بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بجٹ 2026-27 کی۔ سندھ کا 3,562 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ تعلیم، صحت اور زراعت کو ترجیح دی گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ کا 3,562 ارب روپے کا حجم کا بجٹ پیش، تنخواہوں، پینشن اور اجرت میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ کا کوئی نیا ٹیکس عائد نہ کرنے کا اعلان۔ تعلیم، صحت اور زراعت ترجیحات میں شامل۔ عوامی فلاحی شعبوں کے لیے فنڈز مختص۔ وزیر سندھ سید مراد علی شاہ نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نئے مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,562 ارب روپے رکھا گیا ہے، جبکہ بجٹ خسارہ 36 ارب 90 کروڑ روپے ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ Accordingly, the government has decided to provide relief to both public and private sector workers. Honorable Speaker, there will be no new taxes in the next financial year 2026-27. That the minimum wage be enhanced from the current rupees 40,000 per month to rupees 43,000 per month. وزیر سندھ نے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ تعلیم، صحت اور زراعت سمیت عوامی شعبوں کو ترجیح دی گئی۔ The Sindh Institute of Cardiovascular Disease continued to perform free and life-saving treatments throughout its network of 10 cardiac hospitals and 30 chest pain units across Sindh. During financial year 2025-26, SICVD provided treatment to more than 3.44 million patients and at an expenditure of approximately rupees 13.3 billion. ان کے مطابق بجٹ کا مقصد ترقیاتی عمل کو جاری رکھنا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ عاجز جوالی، سٹی 21۔ سندھ کے بجٹ میں کراچی کی ترقی کی نئی امیدیں۔ میگا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 100 ارب 19 کروڑ کا پیکج تیار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر میں 100 مزید الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان۔ 25 نئی ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلانے کی نوید سنا دی۔ ایئرپورٹ روڈ سے اسٹار گیٹ تک 1.2 ارب روپے کی لاگت سے فلائی اوور بھی بنے گا۔ شہر قائد کی ترقی کا سفر، نئی شاہراہوں، بہتر ٹرانسپورٹ، صاف پانی اور جدید انفراسٹرکچر کی جانب ایک اور قدم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مطابق کراچی کے لیے مجموعی طور پر 816 ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ نئے مالی سال میں شہر کے لیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص، جبکہ مجموعی طور پر کراچی کی تمام اسکیموں سمیت 822 منصوبوں کے لیے 108.1 ارب روپے رکھے گئے۔ پیپلز گرین ٹرانسپورٹ پروگرام، 1000 الیکٹرک بسوں کا بڑا منصوبہ، 100 اضافی الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے 25 مزید ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلانے کا اعلان کر دیا۔ 100 electric buses are being inducted into the transport network. Furthermore, procurement of the first 500 electric buses under the broader 1000 EV bus program is being undertaken through a public-private partnership framework, making it one of the largest green transport initiatives in Pakistan. To further strengthen Karachi's transport network, the government has approved procurement of 50 modern double-decker buses at a cost of approximately rupees 4.8 billion, out of which 25 double-decker buses will be on the road in the next 3 months. ایئرپورٹ روڈ سے اسٹار گیٹ تک 1.2 ارب روپے کی لاگت سے فلائی اوور، ملیر ہارٹ سے شارع فیصل تک 1.5 ارب روپے کا رائٹ ٹرن انڈر پاس، جبکہ گجر نالے پر سر شاہ سلیمان روڈ کراسنگ فلائی اوور کے لیے 1.65 ارب روپے مختص ہیں۔ گجر نالہ بحالی اور سروس روڈز کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے، بڑے برساتی پانی فراہمی نظام کی توسیع کے لیے 57 کروڑ 52 لاکھ روپے مختص ہیں۔ During the current financial year, the government continued to invest significantly in water supply, sanitation and drainage infrastructure across Sindh. Out of 167 targeted water supply and drainage schemes, 147 schemes have been completed, while work on 146 additional schemes is progressing and is expected to be completed during the next financial year. سالڈ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروگرام کے لیے 9 ارب روپے سے زائد، جبکہ جام، چھاکرو اور گون پاس لینڈ فل سائٹس کی اپ گریڈیشن کے لیے 118 کروڑ روپے مختص۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ریڈ لائن BRT کے لیے 13.2 ارب روپے، یلو لائن BRT کوریڈور کے لیے
3.5 अरब रुपए से जायद के फंड्स रखे गए हैं। सेहत और तालीम के शोबों में भी कराची के लिए बड़े मंसूबे शामिल। NICBD में बच्चों के अमराज कल्ब यूनिट के लिए 1.4 अरब रुपए, बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज लियारी के लिए 184 करोड़ रुपए से जायद, जबकि सिविल सर्विस एकेडमी के कयाम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर हसन का कहना है कि कराची के ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासी आब, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हुकूमत की अव्वली तरजीह हैं। सिंध असम्बली में बजट के दौरान ऐवान मछली बाजार में तब्दील, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा। वज़ीर आला को बजट तकरीर रोकनी पड़ गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बजट तकरीर का बायकॉट किया और शिकवा किया कि तरक्की नहीं, सिर्फ इक़्तिदार बचाने का बजट है, जिसमें शहरी सिंध और कराची के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। सिंध असेंबली बजट इजलास, अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। वज़ीर आला को बजट तकरीर रोकनी पड़ गई। मुत्तहिदा अपोजिशन इजलास का बायकॉट करके चली गई। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इल्जाम आयद किया कि सूबाई हुकूमत ने शहर सिंध की नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया। हुकूमत ने जमहूरी रिवायत को पसे पुश डालकर यकतरफा अंदाज में बजट पेश किया। हमारा एहतजाज आज CM की स्पीच हुई है, उस पर एहतजाज हुआ, उनके आमिराना रवैये पे एहतजाज था, जमहूरी रिवायात का पास नहीं रखा उस पे एहतजाज था, शहरी सिंध, देही सिंध, पूरे सिंध को इन्होंने बर्बाद किया उस पे एहतजाज था। और ये अब बजट का सिलसिला आगे जाएगा तो एक एक रुकन जो है वो अपनी तकरीर में इनके बजट पे जो है एक एहतजाजी तकरीर करता हुआ नजर आएगा। और जिस अंदाज से बजट में जब पास करने का टाइम आएगा, दीगर हर लेवल पे जो है इंशाअल्लाह ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है आपको नजर आएगी एहतजाज करते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने भी हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कराची मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन वसाइल की तकसीम में इसका हिस्सा नजर नहीं आता। हम बाहर भी निकलेंगे, जमात इस्लामी अपना पूरा लाए अमल बाद में पेश करेगी। वफाक भी कराची के साथ संजीदा नहीं है। K4 मंसूबे में कुछ नहीं रखा, इन्होंने भी K4 मंसूबे के ऑगमेंटेशन के लिए कुछ नहीं रखा। ये टैक्सेस बढ़ाते हैं, ये हमसे पैसा जमा करते हैं, लेकिन इस कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। PTI के शब्बीर कुरैशी ने बजट को अवामी जरूरतों के बजाय सियासी तरजीहात की दस्तावेज करार दिया। भोले बरसों से इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमत शहरी मसाइल हल करने में नाकाम रही। 18 साल से ये सिंध गवर्नमेंट पर काबिज है। अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 31,394 अरब बजट मिला है, लेकिन शहर कराची पूरा सिर डूबा हुआ है। आज तक ये लोग कराची को मोटरवे नहीं दे पाए, आज तक सिंध को मोटरवे नहीं दे पाए। इनका इल्जाम होता है कि जनाब वफाक हमारे साथ नहीं है, वफाक के साथ चट्टा बट्टा कर रहे होते हैं। आज गिलगित बिल्तिस्तान में भी ये वफाक के साथ अपनी हुकूमत तय कर रहे हैं। MKM के इफ्तिखार आलम ने कहा कि सिंध धरती सबकी है, तो फिर तरक्की के सम्राट भी सब तक पहुंचने चाहिए। कराची और हैदराबाद महसूलात देते हैं तो इन्हें तरक्याती मंसूबों में भी नुमाया हिस्सा मिलना चाहिए। 25 मेगा प्रोजेक्ट जो है कराची के अंदर रखे, उन 25 में से 8 ऐसे हैं जो कि अनअप्रूव्ड हैं। 7 अरब रुपए की लागत से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है अनअप्रूव्ड हैं। तो क्या यहाँ की आवाम का यही हाल रह गया है कि वो बजट जो है सिर्फ इश्तिहारात की बुनियाद पर या संगे बुनियाद की बुनियाद के ऊपर ही चलता रहे। अपोजिशन अरकान ने कहा कि वसाइल की तकसीम हो या तरक्याती मंसूबे, शहरी सिंध को नजरअंदाज करने पूरे मुल्क के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है, क्योंकि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान फलता फूलता है। माली साल 2026-27 का सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध को मुसलसल सिंध का 13वां बजट पेश करने का एहसास मिला। बजट में नया टैक्स आयद नहीं किया गया, जबकि अवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ दिया गया। बजट में कम अज़ कम तनख्वाह की हद 44,000 रखी गई है। हुकूमती अरकान ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी कम अज़ कम उजरत 44,000 की हद को यकीनी बनाया जाएगा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। आज सूबाई असेंबली में सिंध का बजट पेश किया जा रहा है। कागज़ पर तो ये सिर्फ आदाद शुमार हैं, लेकिन असल में ये हर घर का चूल्हा, हर मुलाजिम की तनख्वाह और हर बच्चे की तालीम का फैसला है। सवाल ये है, क्या इस बार भी बजट सिर्फ कागजी जीनत बनेगा या फिर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा? आइए जानते हैं। यकीनन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेगी और आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिलीफ है इसके लिए। आमतौर पर गरीब आदमी तो बहुत ही तकलीफ़ में है, उनका कोई अजाला हो, बेहतरी हो, कोशिश तो यही होती है। आपने मरकज़ी बजट देख लिया, वो तो इतना मेरे ख्याल में हौसला अफजा नहीं है।
ऑब्वियसली आप कैसे काउंटर करेंगे इतनी महंगाई को? जो लोग खा पी नहीं सकते, जो लोग 2 रोटी खा नहीं सकते, उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है, और ये डिफ़िकल्टी को आप कैसे सॉल्व करेंगे जब उनकी आप सैलरी इंक्रीज़ करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। मेरे भी ये मसला है, आपका भी ये मसला है, लेकिन हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं, इकनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है उसके तहत, लेकिन हमने कोशिश, मेरे ख्याल में सीएम साहब ने कोशिश की है कि हेल्थ जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें कोई कटौती ना की जाए। 43,000 मनी में वेज तो गवर्नमेंट सिंध का है, तो उसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर अभी इंशाअल्लाह दुनिया की जो माहौल चेंज होगा तो ईरान वाली जंग भी खत्म होगी, हमारे पाकिस्तान भी बेहतर जाएगा। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि हर फैसला अवामी सूरत हाल को सामने रख कर किया गया है। अब देखना यह है कि बजट की लकीरें ज़मीन पर उतरने के बाद महंगाई कम होती है या नहीं, तनख्वाह बढ़ती है या नहीं, चूल्हा आसानी से जलता है या नहीं, ये फैसला अवाम यानी आपका है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिस्ती 21। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सनतकारों ने सिंध हुकूमत के माली साल 2026-27 के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए कोई नया मेगा तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। बजट सनती शोबे और कराची की जरूरियात के मुताबिक नहीं। काटी के सनतकारों का सिंध बजट पर ताफुजात का इजहार। काटी के जौहर कंदारी का कहना था कि कराची मुल्क का माशी हब है, लेकिन बजट में शहर के लिए कोई नया मेगा प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जो मेजर काम करने वाले थे, जो K4 का मनसूबा बहुत अरसे से एक पेंडिंग है, एक नस्ल जवान हो गई है, K4 नहीं बन सका, ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक कोई नहीं लग सका। देखिए, बुनियादी तौर पर आप देखें, कराची वो शहर है जो रेवेन्यू के मामले में पूरे पाकिस्तान में उसका कोई सानी नहीं है। पूरे लाहौर का जितना टैक्स इन्होंने उतना खाली लालू खेत की मार्केट टैक्स देती है। 600-700 अरब रुपए जो है ना गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है सिंध गवर्नमेंट जो है, जिसके अंदर जो है ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, डेवलपमेंट सरचार्ज है, टैक्सेस हैं, इसकी मद में 600-700 अरब रुपए आते हैं। वो पैसे कहाँ हैं सर? उसका कुछ पोर्शन तो कराची में लगना चाहिए ना। सदर काटी इकराम राजपूत का कहना था कि कराची के सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। बुनियादी सहूलियात की कमी सनतों की पैदावारी सलाहियत को मुतासर कर रही है। जहाँ तक इंडस्ट्रियल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं दिया, कोई अपना इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया, तो ये चीज़ें थोड़ी रह गई है। बाकी ऑलमोस्ट बजट ठीक है, कोई नया टैक्स नहीं है, और बस ये है कि जो भी बजट में चीज़ रखी है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सही तरह से अगर लग जाए तो भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। सनतकारों ने मुतालबा किया कि शहर और सनती जोन की तरक्की के लिए मजीद वसाइल फराहम किए जाएँ। तो मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि गरीबों का ख्याल किया जाए, ख़ास तौर से स्पेशल तौर पे उनके साथ जो मसले मसाइल हैं उनको देखा जाए, उनके जो हॉस्पिटल्स के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उनका तरीके से ऑडिट हो। जी बिल्कुल, कराची के लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स और जो सैलरीड क्लास पर्सनस हैं, इन्हीं के टैक्स से ये सारे रेवेन्यू जनरेट होता है। देही इलाकों से लोग शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में आते हैं, वो अब इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो गई है कि ना शहर उनको बर्दाश्त कर पा रहे हैं और ना देही इलाके हमारे उससे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो अगर उन इलाकों के लिए स्पेसिफिक स्कीमें ऐसी लाई जाएं कि जिससे ये रूरल अर्बन माइग्रेशन का जो इशू है ये रिजॉल्व हो, तो आई थिंक वो एक लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट की तरफ से। सनतकारों ने मुतालबा किया कि सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, कारोबारी सरगर्मियों के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएँ। कैमरामैन हारिस के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। शहरियों ने बजट को गरीबों के लिए गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। महंगाई की चक्की में गरीब आवाम पिस रहे हैं। हुकूमत मजदूरों की तनख्वाहों के इजाफे का ऐलान तो कर देती है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है, आवाम के लिए सिर्फ महंगाई है और टैक्सेस ही है। वॉकिंग कस्टमर हमारा कारोबार खत्म हो गया है। इस वक्त आप पूरे कराची की स्पेशली और पूरे पाकिस्तान में लेने कारोबार नाम की कोई चीज नहीं है। शोरूम के अंदर, दुकान के अंदर हफ्ता 10-10 दिन हो जाता है, कस्टमर नहीं आ रहा, किसी भी जगह नहीं आ रहा, मेरा नहीं है, कहीं पे भी नहीं आ रहा। पूरी नर्सरी मार्केट इस वक्त डाउन पड़ी हुई, कारोबार नाम की चीज खत्म हो गई हुई है, कोई कारोबार नहीं है। सर बजट तो आता जाता रहता है, वही वाली बात है। बजट में तो सरकारी मुलाजिम के लिए रिलीफ दिया जाता है, हम गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगा है। 7 या 10% सरकारी मुलाजिम को दिया है रिलीफ,
तो हमारे लिए तो बजट में कुछ भी नहीं दिया। भाई बजट के हवाले से हम ये कहेंगे कि आवाम दोस्त बजट का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं लग रहा। कंपनी जाते हैं वहाँ पे 30,000 की 35,000 रुपए, हुकूमत तो बोलती है 40,000 45,000 तनख्वाह मिलेगी, लेकिन कंपनी का मालिक कोई नहीं देता 40-45,000 रुपए।